Good morning, students. Today we are here with English topic that is supplementary one, The Lost Child Part 2 by Mulk Raj Anand. In part 1 we have already discussed about the story, right? The stories of all about the lost child. Right, the author tries to explore the mind of a child here, and that we have already discussed. And lastly, we also studied that the child goes to a fair with his parents, and he's very excited and wants sweets, toys that is displayed in their stalls. His parents don't buy these things for him, but very soon he gets what happens. Okay, he wants these or that. He was demanding these or that things. We have seen lastly that he demanded burfi, right? But after looking his father's red eye, that is angry face, right? He understood that his parents are there. Sorry, his parents are not going to buy anything, and we can say कि quietly he's quite understander, right? वो बच्चा काफी हद तक we can say कि he understood his parents expression very well, right? By their expression only he can able to get that whether his parents is going to buy something from him for him or not, right? So this was the story up till we have studied that last he was demanding burfi, राइट यूजुअली तो वो बहुत सारी चीजें देख रहा है और उसे बहुत सारी चीजें ही वांट्स टू बाय बट समवेयर ही वाज ट्राइंग टू कंट्रोल हिज डिजायर्स बट एज ही लव बर्फी बट ही डिमांड फॉर इट देन एंड obvious है कि we have seen that his parents again refused him to buy that. So now let's continue that whether he can able to buy something else from the fair or not, or what happened further in the story. Let's start. A flower seller hogged we can say that is a seller or a shopkeeper we can say, ठीक है. और hogged इसलिए कहा है क्योंकि वो stall में है, because in fairs there is not a shop, there is a stall. Okay, वहाँ पे stall लगे होते हैं, that's why we call it as hogged. So जो flower seller hogged है, okay. A garland of gulmohar, a garland of gulmohar. The child seemed irresistibly drawn. अब ऑब्वियस है कि आप कहीं पे भी फेयर में या इवन आप मार्केट में भी जाते हो तो यू फाउंड के लॉट्स ऑफ पीपल या जो भी सेल्समैन या सेल्स बॉय वहां पे यू कैन फाउंड इन द मार्केट दे वर शाउटिंग फॉर देयर प्रोडक्ट्स, राइट? सो दैट के लोगों का ध्यान उनके तरफ खींचे. अगर इफ दे वांट दे कैन बाय, और इफ दे अट्रैक्टेड बाय द थिंग्स दे विल बाय. एंड सेम वे और फेयर्स में तो ऐसा बहुत होता है कि पब्लिक को खींच खींच के ले जाया जाता है उनके शॉप में या उनके स्टॉल में, सो दैट दे कैन एबल टू गेट समथिंग, राइट? सो वहां पे जो फ्लावर सेलर है वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है दैट इज अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर. गार्लैंड ऑफ गुलमोहर यानी वहां गुलमोहर का फ्लावर्स की जो भी पूरा एक गार्लैंड जैसा है, ठीक है. दैट इज वी कैन से हार बोल दो या इन दैट मैनर, गार्लैंड ऑफ गुलमोहर. और चाइल्ड इररेसिस्टिबली वहां खींचा गया. इररेसिस्टिबली यानी कि he wants to stop himself but even he cannot resist it. Okay, वो चाह के भी खुद को वहां से निकाल नहीं सकता, या उसे ना चाह के भी वहां पे उसका ध्यान चला ही गया. Fine, he went towards the basket. तो finally वो वहां पे चला गया. Okay, and where the flowers lay heaped and half murmured, I want that garland. वो तुरंत ही उसके बास्केट के पास गया जहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स रखे हुए थे, एंड तुरंत ही उसने मोमड किया यानी धीरे से कुछ बोलना, ठीक है. सो धीरे से मोमड किया हाफ वे, और उसे हाफ वे इसलिए बोला बिकॉज ही वॉज कॉन्फिडेंट दैट कि अगर मैं अपने पेरेंट्स को बोलता भी हूँ बट दे आर नॉट गोइंग टू बाय फॉर मी. ओके, एंड दैट्स व्हाई ही वाज इनकॉन्फिडेंट वी कैन से. वो कॉन्फिडेंट नहीं था और इसके लिए उसने धीरे से बोला कि आई वांट दैट गार्लैंड, मुझे भी ये चाहिए. बट he well knew his parents would refuse to buy him those flowers because they would say that they were cheap. So उसे ये कॉन्फिडेंस था ही अपने पेरेंट्स को, जानता था अच्छे से कि मेरे पेरेंट्स ऐसे भी रिफ्यूज कर देंगे, दे आर नॉट अलाउड टू बाय मी, राइट? और क्यों क्या कह के मना करेंगे कि ये बहुत चीप है, ये अच्छे नहीं है, राइट? So that's why
he was so confident कि उसके parents उसे ये भी खरीदने नहीं देंगे. So without waiting for an answer, he moved on. तो हमने देखा कि हर जगह पे he was demanding some or other things, or he had that desire to buy some or the other things, but he knew his parents very well, and that's why he without waiting for an answer, he just kept moving on. Okay. A man stood holding a pole with yellow, red, green, and purple balloons flying from it. You can find in the picture it's given itself, right? पोल यानी एक डंडा लेके खड़ा है जिसमें yellow, green यानी colorful balloons you can able to find which is flying from it. The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors, and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. अब ये जो बच्चा है, right, उसके लिए because it is something like rainbow, जैसे rainbows में 7 colors होते हैं, in the same manner he found balloons something like that, and he cannot control his that silken color, the glory of silken color. He was completely attracted by that colors, and he was so much overwhelmed यानी वो उसे ऐसा हो गया कि नहीं बस मुझे ये चाहिए ही चाहिए, right? So with an overwhelming desire to possess them all, so he have that desire, overwhelming desire कि no, I want, at least I want this, anyhow I want this, right? He was so much attracted by that glory of silken colors, right? But he well knew again, उसे ये भी पता है कि उसके parents allow नहीं करेंगे. See, but he well knew his parents would never buy him the balloons because they would say he was too old to play with such toys. So वो अब यहाँ पे क्या बहाने, see, even child know very well कि वो कौन से excuses देने वाले हैं, तब कौन से product में या कौन सी things में what type of access is being given by his parents, he knew that also. Fine. So he also knew that कि अगर मैं बलून की डिमांड करूंगा तो पेरेंट्स क्या कह के मना करेंगे. पेरेंट्स वुड से कि he was too old to play with such toys, यानी वो काफी बड़ा हो गया है और अब वो ऐसे बलून्स जैसे टॉयज से या बलून्स जैसी चीजें बोले या कोई भी ऐसे टॉयज से खेलने के लिए उसकी अब उम्र नहीं रही है. He was quite big according to the parents. Parents ऐसा ही एक बहाना बोलेंगे कि अब तो इतना छोटा बच्चा थोड़ी है जो बलून से खेलेगा. You have grown up, right? So he walked on further. So वो overwhelming desire को भी छोड़ के वो वापस अपने parents के साथ चलता जा रहा है. So अब तक we have found that he had bought nothing or purchased nothing from that fair, right? He desires a lot to buy. He desires a lot the things he wants. He was attracted by a lot, but in the end we found that he always knew what his parents think, right? And he just kept moving on. A snake charmer. Now अब उसे रास्ते में कौन मिला फेयर में? A snake charmer. Snake charmer किसको कहते हैं? The one who catches the snake. जो snake को पालता है या उसका snake का जो show करता है, right? That is we call the snake charmer. So a snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket. अब एक स्नेक चार्मर उसे दिखा जो फ्लूट बजाया, बीन बजाता है ना, वैसे बीन बजाते हैं स्नेक्स को. सो अकॉर्डिंग टू दैट यूजुअली ऐसा कहा जाता है, आई डोंट नो रियली इट हैपेंस और नॉट, कि अकॉर्डिंग टू दैट फ्लूट दैट स्नेक कीप्स डांसिंग और वेविंग इट्स हुड, राइट? सो अब स्नेक चार्मर मिला, राइट? ही वाज प्लेइंग अ फ्लूट टू अ स्नेक. वो स्नेक के लिए फ्लूट बजा रहा था व्हिच कॉइल्ड इटसेल्फ इन अ बास्केट. और उसने कहाँ रखा हुआ था? उसे बास्केट में. कॉइल्ड हमें पता है, राइट? हमने स्नेक एंड द मिरर में भी कॉइल्ड वर्ड पढ़ा था, ओके? जो ऐसे राउंड में वो बास्केट में ऐसा पड़ा होता है. इट्स हैड रेज्ड इन अ ग्रेसफुल बैंड लाइक द नेक ऑफ अ स्वान while the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall. अब तक क्या था कि वो जो स्नेक है वो एक बास्केट में ऐसा होता है जिसमें वो पड़ा हुआ था, बट आफ्टर लिसनिंग दैट फ्लूट, राइट, द म्यूजिक ऑफ द फ्लूट, वो ऐसे अपने हुड को, हेड यानी उसका जो हुड होता है, वो उसने इतनी ग्रेसफुली अपना सर उठाया और जिस तरीके से वो अपने नेक को जैसे वो वेव कर रहा है, राइट? आप देखना, अगर गूगल सर्च करके देखना कि किस तरीके से वो अपने सर को वेव करता है, ओके? सो वो इतनी ग्रेसफुली, उसने इतनी नजाकत से वो वेव करके वो ऊपर आया लाइक अ स्वान, ठीक है? वो क्या बोल रहा है, किसके साथ कंपेयर कर रहा है? इज कंपेयरिंग विथ स्वान. While the
music stole into, ऐसा लग रहा है कि म्यूजिक ने उसके कान में इस तरीके से वो उसके कान में वो म्यूजिक सुनाई दिया, राइट। और वो जिस जेंटल रिपलिंग वी कैन से, सॉफ्ट रनिंग साउंड को वो इतना एंजॉय कर रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे वो इनविजिबल वाटरफॉल हो रहा है और वो उसमें से खड़ा हो रहा है। फाइन। The child went towards the snake charmer, so the child cannot stop himself, and he directly went to the snake charmer, and he wants to enjoy that show of snake. But knowing his parents had forbidden him to hear such coarse music as the snake charmer played, he proceeded further. So ये भी बात उसे पता थी कि अगर वो गया भी वहां पे, but तुरंत ही उसे पता था कि अभी मेरे पेरेंट्स मुझे बुला लेंगे, और my parents had forbidden यानी not allowed. Forbidden का मतलब क्या होता है? Not to allow. He knows very well that his parents won't allow him to hear such types of coarse music, right? And so for that he proceeded further. तो वो अपने पेरेंट्स के साथ वापस आकर आगे निकल गया. There was a roundabout in full swing. अब obviously आप फेयर में जाओगे तो you would found lots of rides, right? So there was a merry-go-round, okay, full swing वहाँ पे था एक ride. Man, women and children carried away in the whirling motion, struck and cried with dizzy laughter. हम जैसे राइड में बैठते हैं तो एक अलग ही आवाज आती है, राइट. वी एंजॉयड इट इन फुल मैनर, राइट. सो जो भी मैन वुमेन बच्चे जो भी उस राइड में बैठे हुए थे वो वॉलिंग मोशन में यानी राउंड मोशंस में घूम रहे हैं और वो चिल्ला रहे हैं, हंस रहे हैं, अ डीजी लाफ्टर, right. So in short they were enjoying a lot this merry-go-round. Okay, now the child watched them intently and then he made a bold request. अब तक ऐसा था कि वो bold request जैसा एक ही बार उसने की, that was at the time of बर्फी. Okay, when he wants to buy or he loves that sweet and he wants to buy it. So बर्फी के टाइम शायद उसने एक bold request की थी, and the second time he made a bold request, that is in roundabout. Okay, so उसने तुरंत ही वो लोगों को enjoy करते हुए उसे इतना मन हो गया, उसकी desire अब और भी strong होगी. And then finally उसने boldly अपने पेरेंट्स को बोला और बोल्ड रिक्वेस्ट किया, I want to go to the roundabout, please father mother. ठीक है, उसने तुरंत कह दिया कि मुझे इसमें बैठना, प्लीज मुझे इसमें तो एटलीस्ट बैठने दो. There was no reply. उसे ये भी श्योर था कहीं ना कहीं कि उसे बैठने तो नहीं मिलेगा, but even though he can't control his desire, right, he was so overwhelmed by that roundabout and finally उसने bold request कर दिया, but again it was failed, right. So there was no reply. हुआ क्या कि उसे यही था कि मुझे ना ही मिलने वाला है, but even though उसे ऐसा लगा 1% चांसेस लगा कि नहीं शायद पूछने में क्या जाता है. So he was busy watching the roundabout. वो मैरी गो राउंड को देखने में बिजी था और उसे देखते देखते ही वो डिमांड उसने की कि I want to go to the roundabout, please father mother. But हुआ क्या कि वहां से कोई रिप्लाई नहीं आया, उसके पेरेंट्स का कोई रिप्लाई नहीं आया, ना हाँ आया ना आया. He turned to look at his parents. So फिर उसने वापस पीछे देखा अपने पेरेंट्स को देखने के लिए कि whether पेरेंट्स का जवाब क्या है, हाँ या ना. They were not there ahead of him. And what happened कि उसके पेरेंट्स वहां पे थे ही नहीं. He cannot found his parents. जो अभी तक सेकंड पहले उनके साथ में थे, सडनली उसके पेरेंट्स वहां पे नहीं थे. They were not there ahead of him. He turned to look on either side. तो उसने दूसरी साइड देखा, right. मतलब in short के शायद he must have been separated from his parents, right. So he was looking forward everywhere. वो हर एक दिशा में हर एक डायरेक्शंस में देख रहा है कि शायद यहाँ वहाँ उसके पेरेंट्स हो गए हो या वो कहीं यहाँ वहाँ उस मैरी गो राउंड के चक्कर में अटक गया. They were not there. He looked behind. There was no sign of them. उसने पीछे देखा. He tried to find it everywhere. वो जहाँ खड़ा है वो उसकी चारों दिशा में in each and every direction he tried to see him कि कहीं से उनको उसे उसके parents दिख जाए, but they were not there. So there was no sign of them. मतलब suddenly वो कहाँ चले गए या ये कहाँ पहुँच गया, God knows. A full deep cry rose within his dry throat. और वो बहुत जोर जोर से रोने लगा क्योंकि अब उसे ये हो गया, पहले वो सेकंड्स पहले नहीं रोया. He was just trying to find his parents. He thought कि शायद यहीं कहीं होने चाहिए उसके parents, but जब वो कहीं
नहीं दिखे, एंड तब उसका वी कैन से कि वो पूरी तरीके से डर गया, एंड ही स्टार्ट crying. Okay, that was a deep cry rose within his dry throat. उसका गला भी पूरा सूख गया था और जिस तरीके से वो रो रहा था, एंड विद अ सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड. और सडनली उसकी बॉडी में एक जर्क आ गया, वो बहुत घबरा गया कि उसके पेरेंट्स कहाँ चले गए, वो कहाँ जाएगा, वो क्या करेगा, और वो यहाँ वहां दौड़ना शुरू कर दिया कि शायद he could able to found his parents somewhere. Crying in real fear, वो बहुत डरा हुआ था और बहुत डरे हुए वो रो रहा था. मदर फादर, और चिल्ला के मतलब हर जगह बता तो नहीं, वी कैन से कि हर जगह वो बोले जा रहा था मदर फादर, कहाँ है मम्मा पापा, राइट. Tears rolled down from his eyes, hot and fierce. His flushed face was convulsed with fear. Now what happened? उसके आंख से पानी गिरी जा रहा है. That was we can say वो रोए जा रहा है. अब वो और धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम जा रहा है वैसे वैसे उसकी बॉडी गर्म हो रही है, रोते रोते वो बहुत ज्यादा डर गया है, राइट. उसके फेस पे वी कैन से कि दैट वाज फ्लश्ड आउट यानी वो टीयर्स रुकने का नाम ही नहीं रहे, एंड convulsed, that is we can say overtaken. He has been overtaken with the fear, right. वो पूरी तरीके से वो डर के बहुत ज्यादा डर गया है. Panic stricken, he ran to one side first, then to other side, heater and teeter in all directions. अब वो बहुत पैनिक हो गया है, right. अब उसकी सिचुएशन ऐसी हो गई कि he can't control और he is not getting what to do. वो पैनिक होके वो यहाँ वहां दौड़ रहा है. हीटर थीटर यानी यहाँ वहां दौड़ना, सारे डायरेक्शंस में, हर दिशा में जाके वो he just trying to find his parents, knowing not where to go. और उसे ये भी समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ जाए वो. ओके, उसके पेरेंट्स कौन से डायरेक्शन में होंगे, वो कहाँ होंगे. ही इज जस्ट रनिंग हियर और देयर. मदर फादर, ओनली द वर्ड्स आर मदर फादर. ही वेल्ड, वो बहुत जोर से रो रहा है और बस अब ऐसा था कि उसे अपने पेरेंट्स चाहिए. हिज येलो टर्बन came untied and his clothes became muddy. और अब क्या हालत हो गई है उसने जो टर्बन पहना, दैट इज येलो इन कलर, अब वो अनटाइड, वो खुल चुका है क्योंकि वो दौड़ रहा है जैसे तैसे. ओके, तो उसका टर्बन भी खुल गया है और उसके कपड़े भी, क्योंकि वो बहुत बुरी तरीके से दौड़ रहा है, वहां पे धूल मिट्टी होगी तो वो मड उसके कपड़े गंदे हो रहे हैं, राइट. सो उसके क्लोथ्स भी अब मडी हो गए हैं. फाइन. Having run to and fro in a rag of running for a while, he stood defeated, his cries suppressed into sobs. At little distances on the green grass, he could see through his filmy eyes men and women talking. अब क्या हो गया, वो इतना दौड़ा है, having run to and fro यानी यहाँ वहां दौड़ दौड़ के, अब फाइनली क्या हो गया है कि वो थक भी गया है और वो हार गया है. He stood defeated यानी अब वो हार गया है यहाँ वहां दौड़ के, because he couldn't able to get his parents, right. and अब उसका रोना अब किसमें बदल गया, दैट इज वी कैन से कि वो बहुत सॉब हो गया. सॉब यानी दैट इज फुल ऑफ इमोशंस, राइट. फुल ऑफ इमोशंस, या वो बहुत ज्यादा सैड हो गया है, राइट. एट लिटिल डिस्टेंस, और अगर दूर से जहाँ पे वो खड़ा और थोड़ी बहुत दूरी पे जहाँ ग्रीन ग्रासेस और वो सब जगह को वो देख रहा है, वहां वो ये भी देख रहा है कि देयर वर फिल्मी आईज थ्रू हिज फिल्मी. उसकी आईज कैसी, क्योंकि उसने जिस तरीके से ये सब कुछ देखा, ही वाज एंजॉयिंग दैट फेयर, इसलिए यहाँ पे उसको फिल्मी आईज बताया है उसकी आंखों को, राइट. दैट वुमेन, मैन एंड वुमेन टॉकिंग, और वो देख रहा है कि कोई कुछ लोग वहां खड़े खड़े फुसफुस कर रहे हैं, right. हर सबको देख रहा है वो. He tried to look intently among the patches of the bright yellow clothes, but there was no sign of his father and mother among these people who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking, right. So he can able to found कि many people in front of him, वो कुछ ना कुछ बातें कर रहे हैं, कोई हंस रहा है, मतलब all are enjoying, and he was just in full of sob. और उसकी कोशिश यही है कि कहीं से, राइट, उस येलो का क्लोथ्स जो है, द पैचेस ऑफ ब्राइट येलो क्लोथ्स, राइट. He was just trying to find his parents, but there was no sign of his father or mother among that people जो वहाँ पे आसपास है उसके. और उस वहाँ पे वो यही देख रहा है कि सब लोग हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं, राइट. But he could not able to found his parents anyway. He ran quickly again, this time to a shrine to which people seemed to be crowding. Every little inch of space he was congested with man, but he ran through people's legs, his little sob lingering, mother, father.
See, now what happened? Now he is running quickly, he is running somewhere here or there, right? उसे जहां ऐसा लग रहा है कि जहां उसके पेरेंट्स के होने के चांसेस है, he is running and running. Okay. सी हमने अभी तक की स्टोरीज में यही देखा कि जैसे हमने समरी में ही ये डिस्कस किया दैट author wants to convey, or we can say author wants to express the love of a child to his parents, right? We have seen के हमने एक स्टार्टिंग के पैराग्राफ में फर्स्ट पार्ट में देखा था that why he refuses the things then. ओके, वी हैव सीन कि वो फेयर में गया, फेयर में वो बहुत सारी चीजें डिमांड कर रहा है, राइट? ही वांट्स दीज दैट, मे बी उसके पेरेंट्स शायद पुअर होंगे या जो कुछ भी है. ओके, ही their parents his parents is not allowing him to buy anything, and he very well knows that all such excuses, राइट? कि उसके पेरेंट्स उसे कौन सी चीज के लिए मना करेंगे और कौन से रीजन के साथ मना करेंगे. ही इवन नो द एक्सक्यूजेस वेल, राइट? सो here we can able to get कि वो अपने पेरेंट्स को कितने अच्छे से जानता है, right? So we can able to found love for his parents. Okay, so अब वो इतना सॉफ्ट हो गया है, इतना लो फील कर रहा है, इतना we can say सैड फील कर रहा है कि he is just running again, right? उसने फिर से दौड़ना शुरू किया, यहाँ वहाँ वो दौड़ रहा है. अब वो कहाँ पहुंचा? अब जिस जगह पे वो दौड़ रहा है, जहाँ पे वो दौड़ रहा है, he can found crowding of people. Okay, there were lots of people, बहुत ज्यादा crowd है वहाँ पे. Every little inch of space here was congested. यहाँ छोटी से छोटी space भी, right? एक इंच की भी जगह नहीं है, इतना congested है with men. Okay, that is full of people. Man here means full of people. Okay, so इतनी भीड़, जैसे हमने देखा है कि फेयर्स में अगर आप देखो कि जैसे शाम होती जाती है वैसे भीड़ बढ़ती जाती है, क्योंकि लोग अब फ्री होते जाते हैं, और जैसे जैसे वो फ्री होते जाते हैं वैसे वैसे वो यहाँ पे आते जाते हैं. सो अराउंड बहुत टाइम हो गया है और अब शाम भी होने आ गई है. सो वी कैन फाउंड कि कंजेशन ऑफ पीपल बढ़ रहा है, बट ही रैन थ्रू पीपल्स लेग्स. बट वो कैसे भी उन लोगों के बीच में से निकल रहा है, उनको धक्का मार के उनके पैर पर से निकल रहा है. बट ही इज जस्ट रनिंग his little sob lingering, right? He's just repeating the things and moving here or there, and वो रोए जा रहा है, वो बहुत ज्यादा sad है, right? And he is only calling mother and father. Somewhere he thinks कि शायद मेरी आवाज सुन के कहीं से उनको उनकी आवाज सुनाई दे और कहीं से वो अपने पेरेंट्स को सुन पाए या उनके पेरेंट्स उसे देख ले. ठीक है. Near the entrance to the temple, however, the crowd become very thick. अब धीरे धीरे जब वो किसी टेम्पल, वहां पे कोई नियरेस्ट टेम्पल होगा, फेयर्स के अगर विलेज फेयर्स की हम बात करें तो विलेज फेयर्स के आसपास हमेशा वो फेयर्स वहीं किया जाता है जहाँ टेम्पल हो. ठीक है. टेम्पल्स के आसपास ही वहां पे वो ऐसे बड़े बड़े फेयर्स किए जाते हैं. सो फाइनली अब वो किसी टेम्पल के एंट्रेंस के पास पहुंच गया है, और टेम्पल के पास वी ऑल नो कि कितना क्राउड होता है, उल्टा ज्यादा भीड़ टेम्पल के पास होती है. तो ही फाउंड दैट ओनली द क्राउड बिकम वेरी थिक. अब और भी ज्यादा भीड़ बढ़ रही है, राइट? मैन जॉसल्ड. और दूसरी बात क्या हमने ये डिस्कस किया कि पहले विंटरी सीजन थी, राइट? जैसे विंटर्स में नैरो लैंड्स में लोग यूजुअली घर के बाहर नहीं निकल रहे थे, फाइन. एंड अब ऐसा है कि स्प्रिंग सीजन शुरू हो रही है, अब ऐसा लग रहा है कि जैसे जेल में से छूट के लोग निकल रहे, इतनी भीड़ बढ़ गई है. मैन जॉसल्ड ईच अदर. लोग एक दूसरे को धक्का मार रहे हैं, एक दूसरे के साथ टकरा रहे हैं, right? That is heavy man with flashing murderous eyes. murderous eyes इसलिए बोला है कि अगर किसी का धक्का लगता है तो वो जिस तरीके से वो गुस्से में देखते हैं, right? That is the expression of people. क्योंकि कोई ना कहीं से उनको धक्के लग रहे, because there is a little inch of space over there. It was so congestion, right? So एक दूसरे से टकरा रहे हैं. They were heavy man with flashing murderous eyes. ऐसा लग रहा है कि वो अभी उसको मार देगा, इतने गुस्से में है. अगर उन्हें एक दूसरे के shoulders, hefty shoulders hefty यानी बहुत heavy shoulders जो होते हैं, वो एक दूसरे के shoulders भी उनके टकरा रहे हैं, राइट? सो वी कैन से कि बॉय ऐसी सिचुएशन में है जहां पे इतने सारे लोग हैं, एंड वो और भी ज्यादा डर रहा है, बिकॉज इतनी भीड़ भाड़ में वो अपने पेरेंट्स को कैसे ढूंढेगा. और यूजुअली हमने कहानियां जो भी जितनी भी सुनी है, हमने यही देखा है कि
बच्चे, हम नहीं कहते कुंभ के मेले में खो जाते हैं, राइट, बिकॉज ये मेले चीज ही ऐसी होती है या फेयर होता ही ऐसा है कि यूजुअली यहाँ पे बच्चे खो जाया करते हैं, राइट. सो यू स्टूडेंट्स आल्सो टेक केयर इफ यू आर going to any such fairs, fine. So here just wants to say this only कि यहाँ पे भी यही हाल है कि अब वो इतना डरा हुआ है कि वो मेले में से कैसे बाहर निकलेगा या वो जाएगा कहाँ, राइट. ही इज नॉट गेटिंग हिज पेरेंट्स येट और इतनी भीड़ है और भीड़ बढ़ती ही जा रही है, राइट. सो अप टिल आज हम ये स्टोरी यहीं तक रखने वाले हैं. इन नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस कि व्हाट हैपेंस द नेक्स्ट. ओके, दैट मीन्स कि अब वो ऐसी भीड़ बढ़ती जाएगी या वो बच्चा अपने पेरेंट्स को ढूंढ पाएगा कि भी नहीं, राइट. हाउ ही इज गोइंग टू फाइंड हिज पेरेंट्स. ओके, या कोई इसकी हेल्प करेगा या नहीं करेगा, कहीं वो उस बच्चे के साथ कुछ गलत ना हो जाए, kidnap ना हो जाए, whatever the story is about, we'll discuss in the next part. And now we are going to discuss rectifying error. We all know what is rectifying error. Rectifying यानी correct करना, errors को correct करना, ठीक है. So this is we call rectifying error. We have already discussed this topic in our first part. जो भी बच्चों ने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, राइट, लेथार्जिक हो गए हैं, लेजी हो गए उस चक्कर में, तो प्लीज डोंट डू दैट. फर्स्ट पार्ट देख लीजिए. इन दैट आई हैव डिस्कस्ड रेक्टिफाइंग एरर clearly. I have given one examples with idea, with answers, right. So इसे कैसे करना है, इसमें क्या करना है, I have already discussed in first part, fine. So अगर वो जिसने भी देखा तो ये बहुत easily क्लियर हो जाएगा या ये बहुत इजी लगेगा आपको. So the question is there is an error in each line. हर एक लाइन में एक एक एरर है. Identify the wrong word. आपको wrong word को identify करना है and write it with the correction in the spaces given. तो आपको उसे correct करके यहाँ पे जो space दी है वहाँ लिखना है, ठीक है. I'll just read out the paragraph. To accomplish anything you need the driving force. Motivation is this force, which was not strong enough to make you you take action. A wish is the weak desire. Only a desire could push you forward to act and accomplish our goals. To get motivated, you need for identity what you want. So in this each line, you would found one mistake. ठीक है, हर एक लाइन में एक एरर है. ओके, यू हैव टू फाइंड आउट दैट एरर, उसे इनकरेक्ट में लिखना है और उसका करेक्ट आंसर आपको करेक्ट के नीचे लिखना है. एंड दिस वुड बी अ होमवर्क फॉर यू, ठीक है. ये आपके लिए होमवर्क है. फर्स्ट पार्ट में मैंने आंसर्स के साथ दिया है, इसमें आंसर्स मैंने नहीं दिए हैं. सो फॉर यू स्टूडेंट्स दिस इज होमवर्क फॉर यू. ओके, आपको खुद इसको सॉर्ट आउट करना है. हाउ टू डू इट ये आप देखो, और इसके आंसर्स मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में या फिर आप जब मुझे, हाँ लिसन, इसके आंसर्स लिख के यू हैव टू सेंड इट मी. ओके, आपको इसका पिक्चर मुझे व्हाट्सएप करना है. ओके, सो दैट जब मुझे सबके आंसर्स मिल जाएंगे देन ओनली आई एम गोइंग टू गिव यू दिस आंसर्स. रिमेंबर ये एग्जाम्स में आ सकता है, सो बी केयरफुल. मुझे इसके आंसर्स चाहिए और यू विल व्हाट्सएप मी. सो दिस इज योर होमवर्क, this is to be done by you. और इससे रिलेटेड कोई भी queries है तो we'll discuss in the live lecture. Is it clear to all? So now I'm ending my lecture here. Hope you enjoyed this lecture. You understand this lecture well. Okay, और नहीं समझ में आया तो twice these lectures को देखिए. वर्ड मीनिंग्स नहीं समझ में आ रहे तो फाइंड आउट, जितने हैं उतने मैंने इसमें समझाए हैं सारे मीनिंग्स आपको. इवन दो यू फाइंड एनी problem in any such meanings, then find it out. Okay, meanings उसके find out कीजिए hard words के and write it down in your fair book. So bye bye, take care all of you, see ya.